નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પેશિયલ રિપોર્ટ. આપની સાથે હું છું ઝરણા. 5 ઓગસ્ટે અયોધ્યામાં મંદિરમાં શિલાન્યાસ યોજાઈ રહ્યો છે. રામનગરી અયોધ્યાને શણગારવામાં આવી રહી છે. ત્યારે આજે વાત કરીશું એક એવી કહાનીની જે તમે વાલ્મીકી રામાયણમાં પણ નહીં સાંભળી હોય, ના તો ટીવી રામાયણમાં જોઈ હશે. ભગવાન શ્રી રામની એક એવું અદ્રશ્ય લોક જે આજે સીતાહરણની કહાનીના પુરાવા છે. ન વાલ્મીકી રામાયણમાં લખવામાં આવ્યું, ન ટીવીની રામલીલામાં જોવામાં આવ્યું, ન કોઈ રામકથામાં સાંભળવામાં આવ્યું. શોધ રઘુવર સાથે જોડાયેલ એક એવી નિશાનીની જે હજુ સુધી દુનિયાની નજરમાં નથી આવી. ये जगह देखने में जितनी सुंदर और अद्भुत है उतनी ही रहस्यमयी है. सीता हरण से पहले राम, लक्ष्मण और सीता इस जगह पर कुछ दिनों के लिए आकर रुके थे. सीता हरण के बाद भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने रात्रि विश्राम किया था. लोग हमें क्यों इस जगह पर आने मना कर रहे थे, ये बात अब हमारी समझ में आई है. इस जंगल में छत्तीसगढ़ में पाया जाने वाला ब्लैक पैंथर मिलता है. आगे जाना बहुत खतरा है, मौत से सामना हो सकती है. अब आप लोग डिसाइड कीजिए कि आगे बढ़ना है, यहीं पे रुकना है. જ્યારે અમારી ટીમ તે નિશાનીની શોધમાં નીકળી ત્યારે ખબર પડી કે તેને આજ સુધી કેમ કોઈ જોઈ ન શક્યું. દંડકારણ્યની ઘાટીમાં 7 પર્વતોને પાર કરવા પડશે, કેટલીય નદીઓની લહેરોને ચીરવી પડશે, ચઢાઈ એવી કે જીવ તાળવે ચોંટી જાય. તે બાદ સામે આવશે પથ્થરો પર બનેલ 8000 વર્ષ જૂની કેટલીક તસવીરો જેનો સંબંધ છે સીતાહરણ સાથે. यही वो शैल चित्र है जिसे सीता हरण के बाद लक्ष्मण ने इन चट्टानों पर बनाया था. आप देखिए, इसमें एक हिरण है, फिर यहाँ पे पंचवटी है, पंचवटी के बाद यहाँ पर ये लक्ष्मण रेखा है. સીતાની શોધમાં ભટકી રહેલ શ્રી રામે અહીંયા તપ કર્યું હતું, જ્યાં લક્ષ્મણે દિવાલો પર ચિત્ર બનાવી સીતાહરણની આખી કહાની વ્યક્ત કરી હતી. જ્યાં લંકામાં ચઢાઈ સાથે માં સીતાની પાછા લાવવાની પૂરી રણનીતિ બનાવવામાં આવી. તો આજે જઈએ તે ગગનચુંબી શિખર પર એક અંધકાર ભરી ગુફામાં વિશાળ શિલાની શોધમાં, જ્યાં ત્રેતાયુગ સાથે જોડાયેલી એક નિશાનીને આજે દુનિયા પહેલી વાર જોશે. રાવણના પુષ્પક વિમાનને લઈ કેટલાય દાવાઓ થાય છે. તે કેવું દેખાતું હશે? કહેવાય છે કે તે શૈલચિત્રોમાં એક ચિત્ર પુષ્પક વિમાનનું પણ છે, જેને આજે દુનિયા પહેલી વાર જોશે. પણ ત્યાં સુધી પહોંચવું સરળ નહોતું. જંગલમાં મુશ્કેલીઓ તો આવે જ છે, પણ અમને સૌથી વધુ ખતરો કાળા ચિત્તાથી હતો. મુકામ હતું શ્રી રામના શૈલચિત્રો, જેમાં સીતાહરણની આખી કહાની જોવા મળે છે. જેને ગણતરીના જ લોકોએ જોયા છે, તેને આજે અમે પણ જોઈશું. कहते हैं कि जगह देखने में जितनी सुंदर है उतनी ही रहस्यमयी भी है. बताया जाता है कि जिस नाम से न आप अछूते हैं और जिस नाम से न मैं अछूता हूँ, उसी नाम राम के कदम 8000 साल पहले इस जगह पर पड़े थे. और ये दंडकारण्य के दक्षिण कौशल का वो हिस्सा है जहाँ पर भगवान श्री राम ने अपने वनवास के 14 वर्षों का सबसे ज्यादा समय बिताया है. कहा यह भी जाता है कि इस कहानी को 8000 साल हो गए, लेकिन 8000 साल बाद आज भी इस जगह पर रामायण कालीन वो साक्ष्य मौजूद है जो खुद राम नाम की गवाही देते हैं. लेकिन भगवान राम से जुड़े हुए इन साक्ष्यों तक आपको पहुंचाने के लिए हमें दंडकारण्य के इस बीहड़ जंगल का बेहद ही खतरनाक और हैरत अंगेज सफर तय करना होगा. કેટલાય પર્વતો પાર કર્યા છે, પણ સીધા પર્વતના ચઢાણમાં આજે પણ મુશ્કેલી પડે છે. हमारे सफर की अभी ये शुरुआत है और इस नजारे को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस जंगल में हमारे आगे का सफर
कितना खतरनाक और रोमांच से भरा हुआ होगा। इसी तरीके से सैकड़ों चट्टानों को पार करते हुए हमें करीब 3 पहाड़ों को और चढ़ना है और उसी के बाद हम राम से जुड़े हुए साक्ष्यों तक आपको पहुंचा पाएंगे। કહેવાય છે કે આ જંગલમાં રામાયણ સાથે જોડાયેલ બીજા બી મહત્વના પુરાવા છે. અહીંયા જ માયાવી રાક્ષસ મરીચીની ગુફા હતી, જેને સોનાના હરણનું રૂપ ધારણ કરી સીતાજીને લલચાવ્યા હતા. इतना सुंदर वन में કહેવાય છે કે સીતાને લઈ રાવણ લંકા જઈ રહ્યા હતા ત્યારે થોડી વાર માટે પુષ્પક વિમાન લંકામાં ઉતર્યું હતું. દાવો હતો કે થોડા વર્ષો પહેલા પુષ્પક વિમાનના નિશાન જોવા મળતા હતા, પણ સમય સાથે તે નામશેષ થઈ ગયા. હવે આ કહાનીઓમાં દમ છે કે પછી હવામાં ગપ્પા, તે ત્યારે જ સાબિત થશે જ્યારે અમને 8000 વર્ષ જૂના શૈલચિત્રો મળશે. મુકામ હજુ દૂર હતો. दंडकारण्य के जंगलों में चलना कितना कठिन है और लोग हमें क्यों इस जगह पर आने मना कर रहे थे, ये बात अब हमारी समझ में आई है कि ये रास्ता बिल्कुल इंसानों के लिए नहीं बना हुआ है. इंसान इस रास्ते पर बिल्कुल नहीं चल सकते हैं. लाइए आप लाइए इसको. देखिए इस तरीके से एक दूसरे का सहारा लेकर और इस तरह से एक दूसरे की मदद करते हुए हमें यहाँ पर आगे बढ़ना पड़ रहा है. अगर कोई अकेला इंसान इस जंगल में अगर फंस जाए तो उसके लिए आगे बढ़ पाना बिल्कुल ही नामुमकिन है. देखिए एक तो ये चट्टानें पूरी तरीके से खड़ी है, यहाँ पर पैर रखने के लिए भी बिल्कुल जगह नहीं है. नीचे कई फीट गहरी खाई है और उन खाइयों में सिर्फ जो है पथरीली चट्टानें हैं. ऐसे में अगर गलती से हमारा एक भी पैर फिसला तो हम सीधे नीचे सैकड़ों फीट गहरी चट्टानों से जा टकराएंगे, जो हमें काफी गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है. અમારો અંદાજ સાચો નીકળ્યો. ઉપર પર્વતમાં સાચી જ કંઈકનું કંઈક છે, જેનો સંબંધ રામાયણ સાથે છે, શ્રીરામ સાથે છે. પણ આ જગ્યાએથી સૌથી મોટો ખતરો શરૂ થવાનો હતો. राम से जुड़ी हुई रिसर्च करने के लिए जो रिसर्चर आते हैं वो आदिवासियों की काफी बड़ी टोली और सुरक्षा के काफी साजो सामान लेकर ही इस जंगल में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बताया जाता है कि इस जंगल में छत्तीसगढ़ में पाया जाने वाला ब्लैक पैंथर मिलता है. इसके अलावा चीता, शेर, बाघ, भालू जैसे कई खूंखार जानवर भी इस जंगल में है, जिसकी वजह से अब इस जगह से आगे बढ़ना खतरे की घंटी है. लेकिन राम से जुड़े हुए साक्ष्यों तक आपको पहुंचाने के लिए हमें इस खतरे की घंटी को पार करते हुए आगे बढ़ना होगा. આદિવાસીઓ મુજબ કેટલાક દિવસ પહેલા આ વિસ્તારમાં કાળું ચિત્તું જોવા મળ્યું. પહેલા ખબર હોત તો અમે આવતા જ નહીં, પણ હવે કશું ન થઈ શકે. ત્યારે આદિવાસીઓએ રોકવાનો ઇશારો કર્યો. પછી જે જોયું તે ચોંકાવનારું હતું. इस जगह पर एक जंगली भैंसे को कुछ दिनों पहले ही बाघ या तेंदुए जैसे खूंखार जंगली जानवर ने मारकर गिराया है. हमारे साथ आए हुए आदिवासी दादा का कहना है कि करीब 3-4 दिन पहले ही तेंदुए या बाघ जैसे जानवर ने इस भैंसे को यहाँ मार गिराया. दादा ये कब का शव दिखाई दे रहा है? ये 3-4 दिन पहले का गिराया है इसको. थोड़ा जल्दी कीजिए क्योंकि लौट का जानवर आ सकता है, क्योंकि अभी पूरा मांस बचा हुआ है. પગના નિશાન હરિસિંહની આશંકાને સાચી ઠેરવી રહ્યા હતા. હવે અહીંયા રોકાવું સલામત નહોતું. मेरा एक सलाह है, आगे तो बढ़ेंगे लेकिन हमको सतर्क रहकर चलना नहीं, पड़ेगा. बिल्कुल सतर्क रहते पूरा हुए. टीम को साथ लेकर चलना है, मेरी जिम्मेदारी है, और सुरक्षित यहाँ से निकालना भी जिम्मेदारी है. जी 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 बिल्कुल. लोकल गाइड होने के कारण तो ये हमको सतर्क रहकर चलना है, पास पास में रहना है पूरा टीम को. जी जी बिल्कुल. टीम बिखरना ना पाए और सब लोग कान लगा सुनते रहे कहीं से आहट तो नहीं आ रही है. नहीं नहीं जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. चलिए, सारी आगे बढ़ते आहटों को हैं. देखते हुए और हम लोग बिल्कुल करीब रहते हुए ही, टीम के सारे लोग करीब रहते हुए ही, एक दूसरे के बिल्कुल करीब रहते हुए ही साथ में चलेंगे.
गोविंदा जो मेरे कैमरामैन है, मैं उनसे भी कहता हूं कि गोविंदा हम लोग साथ में ही आगे बढ़ेंगे। जितने शॉट्स होते हैं जैसे होते हैं और जितना हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं वो हम पास में करीब रहकर ही विजुअलाइज करेंगे। आप भी दूर मत जाइए। ખતરાની જોતા જ અમારી ઝડપ વધી ગઈ। જેવા વિસ્તારમાંથી બહાર જઈશું, રામાયણ સાથે જોડાયેલ કેટલાક પુરાવા અમે જોઈ શકશું। કેટલાક કલાકો વધુ ચાલ્યા બાદ અમે અમારા મુકામ સુધી હતા। એક પર્વત પર બનેલ શૈલચિત્ર અમારી આંખોની સામે જ હતું। इस शैलचित्र में हमें दो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। एक व्यक्ति थोड़ा बड़ा है और दूसरी जो आकृति है उससे थोड़ी छोटी है। कहते हैं कि ये बड़ी वाली आकृति राम है और दूसरी आकृति में लक्ष्मण है। ये दोनों विलाप कर रहे हैं। सीता हरण के बाद जब राम और लक्ष्मण बहुत ही दुखी हुए, बहुत ही विलाप करने लगे, तो उस वक्त उस घटना क्रम को लक्ष्मण ने इन चट्टानों पर उकेरा। પણ આ તે નિશાની નહોતી જેનો દાવો કરવામાં આવ્યો હતો। તે માટે પર્વતની બીજી તરફ જવાનું હતું। ખતરો હતો પણ ઉઠાવવો જરૂરી હતો। બીજી તરફ શિલાઓ પર એક સાથે કેટલાય ચિત્રો બનેલા હતા, જેમાં કેટલાક માણસો હતા, કેટલાક જાનવરો હતા, કેટલીક અન્ય વસ્તુઓ પણ હતી, પણ સમજાતું નહોતું, માટે અમે ગાઈડની મદદ લીધી। ये लगभग 8000 साल पुराने बनाए हुए शैलचित्र है। आप देखिए इसमें एक हिरण है, फिर यहाँ पे पंचवटी है, पंचवटी के बाद यहाँ पर ये लक्ष्मण रेखा है, उसके बाद ये सीता को घसीट कर जो लेकर जा रहा है हाथ पकड़ कर रावण वो है। और जैसे आज के समय में हाईलाइट करते हैं किस चीज को, वैसी इंडेक्स में ये विमान जो पुष्पक विमान बनते हैं ये हाईलाइट करके दिखाया गया है अलग से कोष्टक में। દાવાનું માનીએ તો અહીંયા સીતા હરણ સાથે જોડાયેલ દરેક પાત્રનું ચિત્રણ છે। પંચવટીનો આશ્રમ, હરણ, સીતાનું હરણ કરતો રાવણ અને રાવણનું પુષ્પક વિમાન। अगर इस चलचित्र को हम लोग ठीक तरीके से देखें तो ये पूरा घटनाक्रम हमें सीता हरण की तरह दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर एक मृग हमें दिखाई दे रहा है, जो स्वर्ण मृग था, मारीच जो स्वर्ण मृग बनकर आया था सीता को लुभाने के लिए, सीता को आकर्षित करने के लिए, वो स्वर्ण मृग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद बताया जाता है कि ये पंचवटी जो है ये पंचवटी की आकृति है। उसके बाद जो लक्ष्मण रेखा लक्ष्मण ने खींची थी उसकी एक हल्की सी आकृति अब यहाँ पर दिखाई दे रही है। कौन हो तुम? लंकेश दशानन रावण। तो यहाँ पर एक आकृति हमें एक ऐसी आकृति दिखाई दे रही है जिसे जबरदस्ती कोई व्यक्ति खींच रहा है। देखिए यहाँ पर रावण का चित्र जो है वो धुंधला हो चुका है, लेकिन सीता का जो चित्र है वो अभी भी क्लियर दिखाई दे रहा है। एकदम अभी भी इस चित्र में स्पष्टता है, लेकिन रावण का जो चित्र है वो धुंधला दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हल्का सा ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोई इस आकृति के हाथ को खींच रहा है और यहाँ पर वो दूसरा चित्र रहा होगा। देखिए ये चेहरे का आकार है, यहाँ पर नीचे उसका पूरा शरीर है और ये चेहरे का आकार जो है यहाँ से मिट चुका है। स्वामी, मेरी रक्षा कीजिए ना, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए स्वामी। उसके बाद बताया जाता है कि ये पुष्पक विमान का चित्र है, जिसे एक स्पेशली इंडेक्स में लक्ष्मण ने बनाया था, विशेष रूप से रेखांकित किया गया था। શિલાઓ પરના ચિત્રો ધૂંધળા થઈ ગયા હતા। હરિસિંહ ન હોત તો સમજવા અઘરા હતા, જેમણે 15 વર્ષ પહેલા આ ચિત્રોને જોયા હતા। लगभग 8000 साल पुराने शैलचित्र हैं जो समय और वातावरण के प्रभाव के कारण ये धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। तो आपने जब इन्हें 12-15 वर्षों पहले जब इनको देखा था तो तब ये क्लियर दिखाई दे एकदम क्लियर था, इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। और अब धीरे धीरे जब लोग बाग उसको जान करके अब आए तो कुछ तो इसके कुछ पुराने फोटोज है आपके? जी हाँ, मेरे पास पुराने फोटो हैं जिसमें क्लियर सब कुछ है। અમે કેવી રીતે માની લીધા કે અમને જે કહેવામાં આવ્યું છે તે જ સત્ય છે?
અમે કેવી રીતે માની લઈએ કે આ શૈલચિત્રો 8000 વર્ષ જૂના છે? પૌરાણિક કાળના હોય તો પણ આ ચિત્રોનો સંબંધ શ્રી રામ સાથે છે, તે કેવી રીતે સાબિત થશે? હજુ કેટલાય સવાલોના જવાબ સામે આવશે. સફર હજુ અધૂરી હતી. સૌથી ચોંકાવનારી તસવીર હજુ બાકી હતી. તો આ સાથે જ હાલ સ્પેશિયલ રિપોર્ટમાં રોકાઈશું એક નાનકડા વિરામ માટે. અમને જે મળ્યું જે પ્રાચીન શૈલચિત્રોના અવશેષો હતા, જેને રામાયણ કાળના કહેવામાં આવી રહ્યા છે. આવા કેટલાક ચિત્રો ઉત્તર પ્રદેશના મિર્ઝાપુરમાં પણ મળ્યા હતા, પણ તે 1000 વર્ષ જૂના કહેવામાં આવી રહ્યા છે. કેટલાક શૈલચિત્રો મધ્યપ્રદેશમાં પણ મળ્યા છે, પણ તેને મહાભારત કાળના કહેવામાં આવી રહ્યા છે. અમારી શોધ જો કે હજુ પૂરી નથી થઈ. હજુ અમારે આગળ જવાનું હતું. રાત થઈ ચૂકી હતી. અમે બાજુના ગામમાં જઈ રહ્યા હતા, જ્યાં રાત પસાર કર્યા બાદ સવારે ગુફાની શોધમાં નીકળવાનું હતું, જ્યાં હજુ વધુ પુરાવા હોવાનો દાવો કરવામાં આવે છે. રાતમાં જંગલમાંથી બહાર નીકળવાની બધાને ઉતાવળ હતી, જેનું પરિણામ તે આવ્યું કે બધા એકબીજાથી વિખૂટા પડી ગયા. दादा सिंह साहब, दादा साथ वाले लोग कहाँ चले गए हैं कुछ पता नहीं चल रहा है, और इस घनघोर अंधेरे में जंगल में कहाँ जाए, कैसे आगे बढ़े, कुछ समझ नहीं आ रहा है. ठंड काफी बढ़ गई है और ठंड से बचने के लिए ऊनी कपड़े भी हमारे पास नहीं है. ऐसे में इस ठंड से बचने के लिए हमें सबसे पहले तो अलाव जलाना होगा, और उसके बाद अब शायद से सुबह ही हम हमारे साथियों को खोज पाएंगे. બધાને શોધવાનો વધુ એક પ્રયાસ કર્યો. અંધારામાં આગળ વધવું યોગ્ય નહોતું. રાત જંગલમાં જ વિતાવવી પડશે. मिट्टी का तेल होने की वजह से हमें आग जलाने में काफी मशक्कत नहीं करनी पड़ी. जल्दी ही आग जल गई है और ठंड से जो है वो राहत मिल रही है, और आग जलने की वजह से कोई खुखार जानवर भी, कोई जंगली जानवर, कोई हिंसक जानवर भी हमारे पास नहीं आएगा. अरे सिंह साहब है. हाँ अरे सिंह साहब कहाँ रह गए थे हम लोग? यार मैं डर गया था, एकदम अकेला हो गया था पूरा जंगल में. अब ढलान के बाद एकदम डर गया था, कुछ मोड़ने के बाद दिखता नहीं था, अकेला हो गया था पूरा. हम लोग भी जो है कि हम लोग भी पता नहीं ढलान से जहाँ हमको जगह मिली, हमको पहाड़ जो है तुरंत उतरना था, और पहाड़ हम लोग भी सब लोग जो है कि जहाँ से जगह मिली वहां से उतरे. આખી રાત અમે જાગીને વિતાવી. जंगल में बेहद ही खौफनाक रात गुजारने के बाद अब दिन हो चुका है, और दिन की लालिमा जो है वो इस जंगल में साफ दिखाई दे रही है. इस रोशनी के भरोसे हम लोग इस जंगल में आगे का सफर तय कर सकते हैं. रात भर हम लोग सोए नहीं है, जिसकी वजह से शरीर में काफी थकान है. लेकिन राम के दूसरे साक्ष्य तक पहुंचने के लिए, इस कहानी के हमारे आखिरी पड़ाव तक पहुंचने के लिए हमें हमारे सफर की शुरुआत तुरंत करनी होगी. અમારો મુકામ તે ગુફા કે જે પર્વતની પહેલી બાજુ હતી. કહેવાય છે કે સીતાની શોધમાં ભટકવાથી રામ વિચલિત થઈ ગયા હતા. પછી તે જ ગુફામાં ભગવાન રામે ભગવાન શિવની આરાધના કરી હતી. લોકો કહે છે કે તે જગ્યા પર કેટલાક શૈલચિત્રો પણ છે, જે એકદમ સ્પષ્ટ છે, જેની કહાની પણ રામાયણ સાથે જોડાયેલી છે. થોડો સમય પર્વત ચઢ્યા બાદ અમને પથ્થરો પર કંઈક જોવા મળ્યું.
કદાચ શૈલચિત્રો જ હતા, પણ આ એકદમ સ્પષ્ટ નહોતા. આજુબાજુ કેટલાય ચિત્રો હતા, પણ બધાની હાલત ખરાબ હતી. कहते हैं दंडकारण्य के जंगल के इसी पहाड़ की ऊपरी चोटी पर मौजूद है वो गुफा, जहां पर सीताहरण के बाद भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने रात्रि विश्राम किया था. इस गुफा के इस निचली छोर पर कई शैलचित्र यहाँ भी बने हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वक्त के साथ ये शैलचित्र काफी धुंधले हो चुके हैं और अब उन्हें सामान्य आंखों से देखने के बाद उस तरीके से बयां कर पाना काफी मुश्किल है. અહીં તો સફળતા ન મળી, કદાચ ગુફામાં કંઈ મળે. દાવો છે કે આ જગ્યા ત્રેતાયુગની છે. અમારી નજર કોઈ નિશાનીને શોધી રહી હતી. આ જગ્યાથી અમારા ગાઈડ પણ અજાણ હતા. અમે ચાલતા ગયા, આગળ ચાલતા ગયા, પણ કંઈ જ જોવા ન મળ્યું. युगों पुरानी ये गुफा सही में अंतहीन है. जैसे जैसे हम लोग इस गुफा के अंदर बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे ये गुफा अपना आकार बदलती जा रही है. छोटी छोटी कंदराओं से निकलने के बाद गुफा का और विशाल रूप हमें दिखाई देता है. काफी समय से हम लोग इस गुफा में घूम रहे हैं, लेकिन इस गुफा का कोई अंत हमें नहीं दिखाई दे रहा है. इस गुफा के स्ट्रक्चर को हम लोग ठीक तरीके से देखें तो ये हार्ड रॉक की चट्टानी गुफा है. ये चूने के पत्थर वाली गुफाएं नहीं है जो पानी के कटाव से या किसी अन्य वजह से बन जाती है. ये गुफाएं युगों पुरानी होती है और वैज्ञानिक भी हार्ड रॉक की इन गुफाओं को करीब 8 से 10 हजार साल से भी ज्यादा पुराना मानते हैं. આ ગુફાનો સાચે જ કોઈ અંત નહોતો, પણ કોઈ શૈલચિત્રો ન જોવા મળ્યા. એવી કોઈ નિશાની પણ ન મળી જે આ જગ્યાને શ્રીરામ સાથે જોડી શકે. પણ નીચે અમને કેટલાય ચિત્ર જોવા મળ્યા જેને સીતાહરણ સાથે જોડવામાં આવે છે. શું આ સત્ય છે તે જાણવા માટે અમારી ટીમ રાયપુરમાં એક પુરાતત્વવિદને મળી. તેમને બધી જ તસવીરો બતાવી. આ ચિત્રોને લઈ આદિવાસીઓની માન્યતાઓથી તેમને વાકેફ કર્યા. આ ચિત્રોનો ભગવાન રામ સાથે સંબંધ છે કે નહીં તે માટે તો તપાસ કરવી પડશે, પણ તે નક્કી છે કે આ ચિત્રો 5 થી 8 હજાર વર્ષ પૌરાણિક છે. हम ये निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि वो शैल चित्र जो है लगभग 5 से 10 हजार वर्ष पुराना शैल चित्र है. ये इसमें कोई संख्या की बात नहीं है. लेकिन आपने जो ये बोल रहे हैं और लोगों की जो मान्यताएं हैं कि वो सीताहरण से संबंधित शैल चित्र बने हुए हैं, ये पुरातात्विक दृष्टि से हम उसको प्रमाणित नहीं कर सकते हैं कि वो राम के चित्र बने हैं और वहाँ पर सीताहरण का हुआ था, उस जिसको वहाँ पर वो अंकित किया गया. એટલે આજથી 8000 વર્ષ પહેલા ભગવાન શ્રીરામ આ જગ્યાએ આવ્યા હતા જેને કોરબા કહેવાય છે. આ શૈલચિત્ર પણ કોરબામાં જ છે. આ ચિત્રો સીતાહરણ સાથે જોડાયેલા છે કે નહીં તે રામકથાને વ્યક્ત કરે છે કે નહીં તે હકીકત તો એક મોટી શોધ બાદ જ બહાર આવશે. તો સ્પેશિયલ રિપોર્ટમાં અત્યારે બસ આટલું જ. આવતીકાલે ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી મને આપશો રજા. આપ જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી.